सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आपकी आवाज क्या अब मेरी आवाज क्लियर है? यस सर। ओके।
हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो टर्म है वो ग्रीक शब्द से लिया गया है। ग्रीक शब्द माइक्रोज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है छोटा, सूक्ष्म, स्मॉल। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक टर्म मैक्रोज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लार्ज, बड़ा, व्यापक। अगर मीनिंग के आधार पर इन दोनों के बीच के अंतर को देखा जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विथ individual units, whereas macroeconomics deals with the entire economy. On the basis of problems, the main problem of microeconomics is of price determination. Price determination. Whereas the main problem of macroeconomics is of income and employment determination. The main tools of microeconomics are demand and supply, whereas the main tools of macroeconomics are aggregate demand and aggregate supply. Its alternative name is price theory, where its alternative name is theory of income and employment. I have written 5 points of difference between microeconomics and macroeconomics. What are the differences between microeconomics and macroeconomics? On the basis of term, we can say that microeconomics is derived from Greek word micros, which means small, whereas macroeconomics is derived from Greek word macros, which means large. On the basis of meaning, we can say that microeconomics is that part of economics which deals with individual economic units,
whereas macroeconomics is that part of economics which deals with the entire economy. On the basis of central problems, we can say that microeconomics main problem is of price determination, whereas the central problem of macroeconomics is of income. The central problem of microeconomics is of price determination, whereas the central problem of macroeconomics is of income and employment determination. The main tools of microeconomics are demand and supply. In microeconomics, whatever problem related to price determination arises, those problems are solved on the basis of demand and supply. Whereas in macroeconomics, the problem of income and employment determination are solved on the basis of aggregate demand and aggregate supply. The alternative name of microeconomics is price theory. Microeconomics is also known as price theory, whereas macroeconomics is also known as theory of income and employment. Another point of difference, examples. The examples of microeconomics are individual income, individual output, etc. Whereas the examples of macroeconomics are national income, national output, etc. Once again, I repeat, microeconomics is derived from Greek word micros, which means small, whereas macroeconomics is derived from Greek word macros, which means large. Second, microeconomics is that part of economics which deals with individual economic units. Microeconomics is that part of economics which deals with individual economic units, whereas macroeconomics is that part of economics which deals with the entire economy. I repeat, microeconomics is that branch of economics which deals with individual economic units, whereas macroeconomics is that branch of economics which deals with the entire economy. Third point of difference, on the basis of central problems. The main problem of microeconomics is of price determination, whereas the main problem of macroeconomics is of income and employment determination. Next, on what basis the problems of microeconomics and macroeconomics are solved? The central problems of microeconomics, that is price determination. The central problem of microeconomics, which is of price determination, is solved on the basis of demand and supply. Whereas the central problem of macroeconomics, which is of income and employment determination, is solved on the basis of aggregate demand and aggregate supply. Microeconomics is also known as price theory, whereas macroeconomics is known as theory of income and employment. Some of the examples of microeconomics are individual income, individual output, etc. Whereas the examples of macroeconomics are national income, national output, etc. आपका टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है। तो सबसे पहले
माइक्रो इकोनॉमिक्स जो शब्द है वो ग्रीक शब्द से लिया गया, माइक्रोज से लिया गया है। और माइक्रोज का मतलब होता है स्मॉल, सूक्ष्म, छोटा। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स की अगर बात कही जाए तो मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक शब्द मैक्रोज से लिया गया है, जिसका मतलब होता है लार्ज, बड़ा, व्यापक। माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक शब्द माइक्रोज से बना। माइक्रोज का मतलब होता है स्मॉल, छोटा। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक शब्द मैक्रोज से लिया गया। मैक्रोज का मतलब होता है लार्ज, बड़ा, व्यापक। माइक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग के आधार पर और मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग के आधार पर इन दोनों के बीच में अगर अंतर देखा जाए तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स का वो पार्ट है जिसमें कि हम व्यक्तिगत अध्ययन किया करते हैं, एक के बारे में केवल स्टडी किया करते हैं। Microeconomics is that part of economics which deals with individual economic units. Microeconomics इकोनॉमिक्स का वो पार्ट है जिसमें कि हम केवल एक के बारे में, व्यक्तिगत के बारे में, एक इंडिविजुअल के बारे में ही केवल स्टडी किया करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो शाखा है जिसमें कि हम व्यक्तिगत अध्ययन किया करते हैं, केवल एक के बारे में स्टडी किया करते हैं। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स इकोनॉमिक्स की वो शाखा है, वो पार्ट है जिसमें कि हम संपूर्ण अर्थव्यवस्था के बारे में अध्ययन किया करते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की मुख्य समस्या है कीमत निर्धारित करना। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमें कीमत कैसे निर्धारित किया जाए, उस समस्या को हम समझते हैं, जानते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत कीमत कैसे तय की जाएगी, इस बात का अध्ययन किया जाता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स की मुख्य समस्या है कीमत निर्धारित करना। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स की मुख्य समस्या होती है आय और रोजगार को निर्धारित करना। माइक्रो इकोनॉमिक्स की मुख्य समस्या है कीमत निर्धारित करना, वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स की मुख्य समस्या है आय और रोजगार निर्धारित करना। माइक्रो इकोनॉमिक्स की जो मुख्य समस्या है कीमत निर्धारित करने की, वो समस्या सुलझाई जाती है डिमांड और सप्लाई के आधार पर। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स की जो मुख्य समस्या है आय और रोजगार निर्धारित करने की, वो समस्या सुलझाई जाती है एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई के आधार पर। माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा नाम है, वैकल्पिक नाम है, प्राइस थ्योरी। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ उदाहरण हैं व्यक्तिगत आय, व्यक्तिगत संस्थाओं द्वारा किया जा रहा उत्पादन वगैरह। व्यक्तिगत, जब कभी भी हम व्यक्तिगत इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करते हैं, वो हिस्सा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। वहीं मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ उदाहरण हैं राष्ट्रीय आय, राष्ट्र का कुल उत्पादन वगैरह, नेशनल इनकम, नेशनल आउटपुट वगैरह। तो ये कुछ डिफरेंसेस रहे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बीच। If you have any doubt related to this topic, you can ask me question. अगर आपको कुछ भी ऐसा जो नहीं समझ में आए, इसमें कुछ भी आपको पूछना है, आप पूछ सकते हो। Any question? So your next topic is interdependence and interrelationship between micro and macro economics.
interdependence between microeconomics and macroeconomics. Both the branches of economics, that is microeconomics and macroeconomics, are interlinked, are interrelated and are interdependent. माइक्रोइकोनॉमिक्स की ये जो दोनों ब्रांचेस, सॉरी, इकोनॉमिक्स के ये जो दोनों ब्रांचेस हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, वो दोनों के दोनों परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर करते हैं. हमें इस टॉपिक में यही जानना है कि कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कैसे वो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं. तो यहां पर आपका जो हेडिंग रहा वो है, टाइटल है आपका, टॉपिक है इंटरडिपेंडेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, हाउ the two branches of economics, that is microeconomics and macroeconomics, are interrelated and interdependent. माइक्रोइकोनॉमिक्स और मैक्रोइकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स के दो पार्ट हैं और ये दोनों के दोनों पार्ट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और एक दूसरे पर निर्भर भी करते हैं. सवाल ये उठता है कि कैसे ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और कैसे ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं. तो सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स depends on macroeconomics. Microeconomics depends on macroeconomics. Microeconomics depends on macroeconomics. Micro variables depends on behavior of macro variables, that is decisions of micro level depends on decisions taken at macro level. For example, increase in overall tax rate will influence an individual's decision to buy a car. It shows that the decisions which are taken at the micro level are influenced by the decisions taken at the macro level. Microeconomics depends on macroeconomics. Microeconomics निर्भर करता है macroeconomics पर. How? The micro variables depends on the behavior of macro variables. That is, decisions taken at the smaller level, at the individual level, gets influenced by the decisions which are taken at the broader level, at the national level. Let me give you an example of it. Any decision relating to tax is a part of macroeconomics, since decisions taken at decisions taken at the national level, at the economic at the economy level, I was telling you, microeconomics depends on macroeconomics. It means that micro variables depends on the behavior of macro variables. Any decision taken at the national level, at the economy level,
will influence the decisions taken at the smaller level, at the individual level. As for example, any decision relating to tax is taken at the national level or at the economy level. Suppose there is increase in tax rate. An increase in tax rate has been made by the government. This decision is taken at the national level, at the upper level, at the broader level. So it will be a part of macroeconomics. But this decision taken at the macro level, at the broader level, at the national level, will influence an individual's decision to buy any product. Because if there is rise in tax rate, the prices of all the commodities will go up. And when the prices of commodities goes up, we at individual level demand less for that commodity. So our individual demand gets influenced. We demand less of commodity. इस पॉइंट में ये कहा गया है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स निर्भर करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स पर. माइक्रो इकोनॉमिक्स निर्भर करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स पर. माइक्रो इकोनॉमिक्स निर्भर करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स पर. इसका मतलब ये निकलता है कि बड़े स्तर पर जो फैसले लिए जाते हैं, राष्ट्र स्तर पर, अर्थव्यवस्था के स्तर पर जो फैसले लिए जाते हैं, उन फैसलों से हमारे व्यक्तिगत, हमारे निजी फैसले भी प्रभावित होते हैं. माइक्रो इकोनॉमिक्स निर्भर करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स पर. कहने का मतलब हमारा व्यक्तिगत फैसला, इंडिविजुअल डिसीजन निर्भर करता है इस बात पर कि ब्रॉडर लेवल पर, इकोनॉमी लेवल पर या नेशनल लेवल पर क्या फैसले लिए गए हैं. राष्ट्र स्तर पर जो फैसले लिए जाते हैं उससे हमारा व्यक्तिगत फैसला जो है वो प्रभावित होता है. उदाहरण के लिए कर दरों में परिवर्तन किया जा रहा है. मान लीजिए कि कर दर बढ़ाया जा रहा है, टैक्स रेट्स जो हैं वो इंक्रीज किए जा रहे हैं. तो ये फैसला जो है नेशनल लेवल पर लिया जा रहा है, इकोनॉमी लेवल पर लिया जा रहा है. अब इस फैसले से हमारा व्यक्तिगत फैसला भी प्रभावित होगा. मान लें कि कर दरें बढ़ा दी गई, टैक्स रेट्स बढ़ा दिए गए, फैसला लिया गया एट ब्रॉडर लेवल, एट इकोनॉमी लेवल, एट नेशनल लेवल, ये डिसीजन लिया गया. और मैं एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के तौर पर कार खरीदना चाहता था. जब टैक्स रेट्स बढ़ा दिए जाएंगे तो उसका असर पड़ेगा वस्तुओं की कीमतों पर. वस्तुओं की कीमतें जो है वो बढ़ेंगी, लोगों की खरीद करने की क्षमता जो है वो घटेगी. जब टैक्स रेट बढ़ा दिया जाएगा, मान लीजिए जीएसटी बढ़ा दी गई, तो उससे क्या होगा कि कमोडिटीज के प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे. और जब कमोडिटीज की कीमतें बढ़ती हैं तो उसका असर हमारे व्यक्तिगत फैसलों पर पड़ता है. हम पहले की तुलना में मांग जो है कम करते हैं. तो मैं कार खरीदने की जो सोच रहा था उस चीज को मैं टाल दूंगा. तो यहाँ पर फैसला लिया गया है नेशनल लेवल पर, इकोनॉमी लेवल पर, बड़े स्तर पर फैसला लिया गया, लेकिन उस फैसले का स्तर व्यक्तिगत स्तर पर सर भी. आपकी आवाज नहीं आ रही है. उस फैसले का असर जो है व्यक्तिगत स्तर पर भी पड़ा है. तो इस पॉइंट में यही मैंने कहा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स निर्भर करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स पर. हमारे व्यक्तिगत फैसले प्रभावित होते हैं बड़े स्तर पर लिए जा रहे फैसलों से. राष्ट्र स्तर पर जो फैसले लिए जाते हैं, नेशनल लेवल, इकोनॉमी लेवल, ब्रॉडर लेवल पर जो फैसले लिए जाते हैं, उन फैसलों का असर हमारे व्यक्तिगत फैसले पर पड़ता है. उदाहरण देते हुए मैंने कहा कि टैक्स रेट्स बढ़ाया जा रहा है. ये डिसीजन नेशनल लेवल, इकोनॉमी लेवल पर लिया गया, लेकिन उसका असर हमारे व्यक्तिगत फैसले पर भी पड़ेगा. जब टैक्स रेट बढ़ा दिया जाता है नेशनल लेवल पर
तो वस्तुओं की कीमतें जो हैं वो बढ़ जाती हैं। अब वस्तुओं की कीमतें जब बढ़ती हैं तो हम मांग जो है पहले की अपेक्षा तुलनात्मक तौर पर हम मांग जो है कम करते हैं। तो यहाँ पर फैसला भले ही लिया गया राष्ट्र स्तर पर, लेकिन उसका असर व्यक्तिगत स्तर पर दिखाई दे रहा है। फैसला भले ही लिया गया बड़े स्तर पर, लेकिन उसका असर छोटे स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। कहने का मेरा मतलब ये है, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बड़ा है वो छोटे को प्रभावित कर रहा है। द मैक्रो डिसीजंस आर इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजंस टेकन एट द माइक्रो लेवल। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स निर्भर करता है मैक्रो इकोनॉमिक्स पर। दूसरा पॉइंट इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स depends on microeconomics. Macroeconomics depends on microeconomics. न केवल इंडिविजुअल डिसीजन प्रभावित तो होते हैं राष्ट्र स्तर पर लिए गए फैसलों से, बल्कि द डिसीजंस एट द मैक्रो लेवल also gets influenced by the decisions taken at the micro level. जो बड़ा है वो भी छोटे से प्रभावित होता है। बड़े स्तर पर, राष्ट्र स्तर पर जो फैसले लिए जाते हैं वो भी प्रभावित होते हैं हमारे व्यक्तिगत फैसलों से। अगर इन दिनों सभी पहले की अपेक्षा मांग जो है कम कर रहे हैं, ये हमारा फैसला है, व्यक्तिगत फैसला है। मैं व्यक्तिगत तौर पर पहले की तुलना में डिमांड कम कर रहा हूं, सभी चीजों की डिमांड पहले की अपेक्षा मैं कम कर रहा हूं। दिस इज अ डिसीजन टेकन एट द इंडिविजुअल लेवल, सो इट विल बी अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब आप भी इंडिविजुअल लेवल पर डिमांड जो है वो कम कर रहे हो, ये आपका फैसला है। इंडिविजुअल लेवल पर ये डिसीजन लिया गया, इट विल बी अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसे करते हुए हर व्यक्ति विशेष मांग जो है पहले की तुलना में कम कर रहा है। अगर व्यक्ति विशेष की बात कही जा रही है तो वो पार्ट होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स का, लेकिन इसका असर बड़े स्तर पर भी पड़ता है, राष्ट्र स्तर पर भी इसका असर दिखेगा। किस तरह से असर दिखेगा? जब हम मांग कम करेंगे तो देश में मांग जो है कम होगी। देश में मांग कम होगी तो देश का जो एग्रीगेट डिमांड है वो घटेगा। यहां पर हमारे व्यक्तिगत फैसले का असर राष्ट्र स्तर पर भी पड़ा। ड्यू टू फॉल इन इंडिविजुअल्स डिमांड, देयर इज फॉल इन national demand for goods and services, that is there is fall in aggregate demand for goods and services. और एक एग्जांपल लो, इंडिविजुअल की इनकम, एक टर्म नेशनल इनकम की अगर मैं बात करूं, नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ इनकम्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स लिविंग विद इन द कंट्री who are the residents of a country. अगर मैं सिंपल मीनिंग कहूं नेशनल इनकम की, तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? सम टोटल ऑफ इनकम ऑफ ऑल इंडिविजुअल रेसिडेंट्स ऑफ अ कंट्री। देश के सभी निवासियों के इनकम को जब हम जोड़ देते हैं तो हमें जो इनकम मिलता है उसी को हम कहते हैं नेशनल इनकम। तो अगर यहां पर मुझे ये शो करना है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स निर्भर करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स पर, मतलब बड़े स्तर पर जो भी कुछ होता है
वो काफी हद तक निर्भर करता है छोटे स्तर पर लिए गए फैसलों पर। अगर मेरी इनकम बढ़ रही है, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, दैट विल बी अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक के बारे में जब कभी भी हम स्टडी करते हैं वो हिस्सा होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। अगर इंडिविजुअल्स की इनकम बढ़ रही है, मेरी, आपकी, हम सबों की अगर इनकम बढ़ रही है, तो उसके चलते नेशनल इनकम भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है छोटे स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, उसका असर राष्ट्र स्तर पर भी दिखाई दे रहा है। द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री गोज अप, द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री इंक्रीजेस। तो कुल मिलाकर इस पॉइंट में ये कहा गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डिपेंड्स ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। Micro variables depends on the behavior of macro variables. That is, decisions taken at the lower level depends on the decisions taken at the broader level, at the economy level, at the national level. For example, if there is increase in tax rate in an economy, then the prices of the commodity will go up. And with rise in price, the individual's demand, the individual's decision to demand for a commodity will also decrease. There will be a fall in demand. On the